Hello students, today's topic is structural approach. The structural approach is also known as new approach or oral approach. This approach is the outcome of the extensive research works conducted on the subject of English as a foreign language at the Institute of Education in the University of London. True language learning is learning to use the tools of a language. What are the tools of a language? The tools of a language are sounds, words, structures and patterns. So in the learning of English, mastery of structures is very important. The structural approach means the arrangement of words in such a way as to form a suitable pattern of sentence. Structural approach is also known as new approach. Structural approach is based on the theory of behaviorist. Each language has its own structures. What are the structures? The different arrangement or patterns of words are called structures. Structures may be complete utterances or form part of a large pattern. For example, Hari is Hari there? In the above two sentences, the same vocabulary items are used. These are Hari, is and here. But the meaning of these two sentences are different due to different arrangement of words. Structure may also be defined as the tools of language. Tools of a language are rhyme, intonation, words, sound, etc. With the help of these tools, the teacher develops certain skills among the students. These are skill of understanding, skill of speaking, skill of reading and skill of writing. The structures are carefully graded so that a cumulative approach to them might give to the young learner a working command of spoken and written English. Structures are different from sentences. A sentence needs a grammatical order of words, but structures need not have any grammatical background. As there are many structures, for example, good morning, well done, are not sentence, but these are structures. In sentence में grammatical order होना आवश्यक है, परंतु structures में मीनिंग तो कंप्लीट होता है बट ग्रामेटिकल ऑर्डर नेसेसरी नहीं है. टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. सेंटेंस पैटर्न्स. Sentence pattern is a model for a sentence. As Ram goes to school, Hari goes to school, Sita goes to school, etc. Sentence patterns can be divided in various parts. As 2 parts, Ram runs. 3 parts, he is going. 4 parts, Hari is reading a book. Pattern beginning with a question word, where does Ram live? Pattern begins with a question verb, are they coming? Patterns that show command and request, open the door, stand up. Pattern request, please give me a glass. There are various patterns. Second है phrase pattern. Phrase is a word or group of words which depicts on idea without being a sentence. Example, into the well, over the tree, etc. Formulas. Formulas are group of words that are used on certain occasions to convey a definite meaning, as thank you, excuse me. Next, idiomatic structures, groups of words that must be learned as a whole. Example, all in all, bag and baggage, etc. idiomatic structures में यदि आप कोई भी words उसमें से लैप्स कर दें तो उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता. नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स. इट मीन्स कैसे स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट किया जाए. फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए यूजफुलनेस. द यूजफुलनेस ऑफ अ स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स. फर्स्ट है हाउ फ्रिक्वेंटली इट अकर्स इन बोथ द स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश.
नेक्स्ट है हाउ फॉर इट प्रोवाइड्स फॉर द फर्दर बिल्डिंग अप ऑफ द लैंग्वेज, कैसे वो दोनों में यूज़ किया जाए, स्पोकन में और रिटन में। और दूसरा है कि वो बिल्ड करे, एक स्ट्रक्चर ऐसा हो उसके बाद उसी से दूसरा सेंटेंस प्रोवाइड हो जाए। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, इन द इनिशियल स्टेज ओनली सिंपल स्ट्रक्चर शुड बी टॉट एज ही गोज, आफ्टर दैट ही इज गोइंग एक्सेट्रा। Structure should be simple so that students can understand. Teachability, it is easy to teach structures that are easily demonstrated in a realistic situation. As teacher can say, I am sitting, I am walking, करके भी दिखा सकता है, चेयर पे बैठते हुए कह सकता है आई एम सिटिंग, चलते हुए आई एम वॉकिंग। जब टीचर ऐसे बोलेगा, करके दिखाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, तो स्टूडेंट्स उसको ईजिली समझ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, स्ट्रक्चर शुड बी प्रोडक्टिव एज एक चेयर, दिस इज अ चेयर एंड आफ्टर दैट टीचर कैन से दिस इज द चेयर, इट हैज़ 4 legs, it made by wood etc. Next है gradation of structures, after the selection of structures they should be put in a suitable order as simple 2 part, I played 3 part, 4 part, negative, question, request, command as request pattern, please give me a glass, command pattern, open the door, question beginning with a question word, when will he come etc. नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, इट मीन्स कैसे स्ट्रक्चर को प्रेजेंट किया जाए। फर्स्ट है स्टार्ट विद ओरल वर्क, ओरल वर्क से स्टार्ट किया जाए। यूज़ ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन का यूज़ किया जाए, जैसी सिचुएशन हो उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूशन टेबल, सब्सटीट्यूशन टेबल जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अ फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल, एन ईगल इज़ अ क्लेवर एनिमल, अ डॉग इज़ अ क्लेवर एनिमल। एक सेंटेंस से कुछ वर्ड्स को यूज़ करके अलग अलग सेंटेंस बना दिए जाएं। इससे स्टूडेंट सब्सटीट्यूशन टेबल जनरली आपने देखे होंगे कि छोटे बच्चों की बुक्स में पीछे एक्सरसाइजेज में दिए हुए होती हैं, उससे बच्चा कुछ वर्ड से अलग अलग सेंटेंस बनाना सीख जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, फर्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंस टू स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, स्पीच को इंपॉर्टेंस दी जाती है स्ट्रक्चरल अप्रोच में। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन, जब एक एक स्ट्रक्चर को बार बार सिचुएशन क्रिएट करके उसमें प्रैक्टिस कराई जाती है तो हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, बार बार रिपीटेशन कराया जाता है तो स्ट्रक्चर्स पर मास्टरी हो जाती है। और मीनिंगफुल सिचुएशन। मेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, एम्फासिस ऑन ओरल ड्रिल, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, गुड प्रेजेंटेशन, प्रॉपर सिचुएशन, हैबिट फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स गेट प्लेजर एंड कॉन्फिडेंस। डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, मेरिट्स के साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे बेस्ट सुटेड फॉर अर्ली स्टेजेस, एट हायर क्लासेस, एट हायर स्टेज टीचर कैन नॉट टीच थ्रू स्ट्रक्चरल अप्रोच, इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर अर्ली स्टेज। नेक्स्ट है ओवर एम्फोसिस ऑन ओरल वर्क, ओरल वर्क पर इसमें इस अप्रोच में अत्यधिक एम्फोसिस दिया जाता है। इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग, राइटिंग तो इग्नोर ही है। वेल सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स कैन ओनली टीच, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू नहीं पढ़ाए जा सकते। नीड वेल ट्रेन टीचर्स, टीचर्स वेल ट्रेन चाहिए कि कैसे सिचुएशन में स्ट्रक्चर्स बनाएं और किस तरीके से उनको सिलेक्शन और ग्रेडेशन किया जाए। टू मच यूज़ ऑफ मटीरियल एड्स, सिचुएशन क्रिएट करने के लिए मटीरियल एड्स की आवश्यकता होती है, तो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल एड्स और उन पर बेस्ड स्ट्रक्चर्स तैयार करने पड़ते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, जब आपको मटीरियल एड तैयार करनी है, ट्रेंड टीचर्स चाहिए तो टाइम भी उसमें अधिक लगता है। रिक्वायर नाइसली प्लान्ड टेक्स्ट बुक, स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू टीचिंग करने के लिए जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो नाइसली प्लान्ड होनी चाहिए। थैंक यू।